10वीं क्लास ਦੇ बहुत ही प्यारे ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਲਾਈਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਮਿਲਕ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਮਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨ ਆਇਰਨ ਆਰਟੀਕਲ is left exposed to humid atmosphere. Similarly, fermentation of grapes. इसी तरह when food is cooked, food gets digested in our body. Similarly, when we undergo respiration. ਸੋ ਇਹ ਲਗਭਗ 6 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਸਮਰ ਮੀਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਲਕ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਇਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਇਰਨ ਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੂਡ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ when no new substance is formed, when the shape or size of the object or state of the object changes. Such changes are called physical changes. For example, ice on heating changes into liquid water. So when liquid water we heat it, it converted into water vapors and vice versa. So that is physical change. But what is chemical change? Chemical change means when new substance is formed, like burning of the paper results in the formation of ash. So the properties of that paper is much different from the properties of that ash. That's why that is a chemical change. Like a burning of LPG in our kitchen, that is also a chemical change. So we have to be knowledge about the physical changes and chemical changes and some of the examples of that also. क्योंकि पेपर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ कि define physical change and give example, like define chemical change and give example. So now we are going forward for an activity that is in our book and we have to perform. Activity 1.1 है अपनी कि we have to take 3 to 4 centimeter long magnesium ribbon. Here it is shown a magnesium ribbon. And we have to rub that magnesium ribbon with a sandpaper. And why we have to rub magnesium ribbon? The reason is that a coat of magnesium oxide is formed on the magnesium ribbon when it is kept in open.
क्योंकि एक तरह की रस्टिंग हो जाती है, जिमें आयरन आर्टिकल्स के उपर रस्टिंग होंदी है, उस तरह यदा भी करोशन होंदा है। करोशन मतलब जिहड़ा आउटर सरफेस है उस दे विच चेंजिस आ जानियां, उसका एक तरह नाल गल जाना, आउटर सरफेस का बदल के उसकी जगह पर होर सरफेस फॉर्म हो जाना। सो मैगनीशियम रिबन के उत्ते एक वाइट कलर की कोट बन जाती है, जिसनों आप मैगनीशियम ऑक्साइड कहने। सो सब तो पहला काम ये करना है कि आप जी 2-3 सेंटीमीटर का मैगनीशियम रिबन लेना है, उसनों आपां सैंड पेपर नाल रब करना पैना। रब करके आप मैगनीशियम ऑक्साइड की कोट उस तो रिमूव कर रहे हैं, ताकि थले मैगनीशियम रिबन जोड़ा है अपने को क्लीयर आ जाए। दैन आफ्टर आप पेयर ऑफ टोंग्स दे विच उस मैगनीशियम रिबन नूं फसावांगे, तो उस मैगनीशियम रिबन नूं आप बर्नर की फ्लेम के उपर रखांगे। वट वी विल सी मैगनीशियम रिबन बर्न विद अ वाइट फ्लेम। इसकी वाइट कलर की फ्लेम होगी जदों ये बर्न करेगा मैगनीशियम रिबन, तो जिमें जिमें बर्न करता जाएगा इसकी वाइट कलर की ऐश जिहड़ी हैगी है वो डिगदी जाएगी। वो आप वाच ग्लास दे विच सुट्टनी है। सो वाच ग्लास दे विच मैगनीशियम रिबन की बर्निंग ऐश जिहड़ी हैगी सुट्टांगे। अच्छा, उस ऐश का कैमिकल फॉर्म नेम की है, डैट इज़ मैगनीशियम ऑक्साइड। क्यों मैगनीशियम ऑक्साइड क्या उस ऐश नूं? बिकॉज मैगनीशियम तो ये सी जदों उन्होंने बर्न किया तो उस फ्लेम के विचों मैगनीशियम नूं ऑक्सीजन मिली, तो उस ऑक्सीजन तो मैगनीशियम के रिएक्शन के नाल जिहड़ी ऐश बनी डैट इज़ मैगनीशियम ऑक्साइड। हुण वो ऐश भी वाइट कलर की है, फ्लेम भी इसकी वाइट कलर की है, जिहड़ी मैगनीशियम रिबन के उपर कोट चढ़ी सी मैगनीशियम ऑक्साइड की वो भी वाइट कलर की सी। तो हुण आपां इस तो नैक्सट स्टैप की करना है, जिहड़ी ये ऐश इत्थे पई है इसकी आपां नेचर पता करनी है की है। सो वट इज़ द नेचर ऑफ दिस ऐश, एंड टू परफॉर्म डैट वट वी हैव टू डू, आपां नूं इस वॉच ग्लास दे विच थोड़ा जिहा पानी पाना पवेगा। पानी पा के ऐश ते पानी नूं आपां दोनों नूं मिलावांगे, ऐश नूं पानी विच घुल जाण देवांगे। दैन आपां की करांगे, ब्लू लिटमस पेपर ते रैड लिटमस पेपर लवांगे। जदों आप ब्लू लिटमस पेपर इस लिक्विड दे विच डिप करांगे तो ब्लू लिटमस पेपर दे विच कोई चेंज नहीं होगी, डैट रिमेन ब्लू। बट जदों ही आप इस लिक्विड दे विच रैड लिटमस पेपर पाया, वो रैड लिटमस पेपर चेंजिस टू ब्लू कलर। सो जदों रैड लिटमस पेपर ब्लू कलर विच चेंज हो जाता है ड्यू टू सम लिक्विड्स, वी से डैट लिक्विड इज़ अ बेस। तो उतों आपको पता लग जाएगा कि इस मैगनीशियम ऑक्साइड की नेचर की होगी, डैट नेचर इज़ बेसिक नेचर। तो इस तरह आपू इस दे नाल रिलेटेड एक्टिविटी भी जी हैगी है, ये एक्टिविटी आप की है। इस एक्टिविटी तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने को आउणगे जिहड़े आपां नूं स्टडी करने पैणगे। सो ये मैगनीशियम ते ऑक्सीजन की जिहड़ी रिएक्शन हैगी है वो भी जे आप देखिए तो आ रिएक्शन है, मैगनीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैगनीशियम ऑक्साइड। सो ये कैमिकल इक्वेशन जिहड़ी हैगी है, ये रिएक्शन जिहड़ी उस दे विच हो रही है ये वो हैगी। इस तरह अपने कोले क्योंकि आप कैमिकल रिएक्शनस की ही गल कर रहे हैं तो होर भी अपने कोले एक्टिविटीज़ हैगियां, लाइक आह एक्टिविटी 1.2 तो एक्टिविटी 1.3 हैगी है जिहड़ी आप करांगे। एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। आप की करना है कि थोड़े जे जिंक ग्रैन्यूल्स आप एक कोनिकल फ्लास्क दे विच पावांगे। उस कोनिकल फ्लास्क दे उसनूं आप कॉर्क दे नाल बंद करांगे, बट कॉर्क दे विच ग्लास ट्यूब फिट की होगी। तो पर एक गल आप होर इस विच नोट करनी हैगी है कि जिंक ग्रैन्यूल्स पा के आप इस दे विच नाल दी नाल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी पाना है, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पा सकते हैं। आप इत्थे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पावांगे या दोनों चो कोई भी, तो उसनूं बंद कर देंगे। जदों आप इसनूं बंद कर देंगे कॉर्क दे नाल, वट वी विल ऑब्जर्व स्लोली आप देखांगे इस दे विच गैस आपां नूं अपीयर होंदी दिखेगी, क्योंकि
इस विच कैमिकल रिएक्शन हो रही है जिंक ते सल्फ्यूरिक एसिड की या जिंक ते हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जिस दे रिजल्ट वजों हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। ये हाइड्रोजन गैस नूं जदों आपां बाहरले पासे माचिस की तिली इत्थे आपां बाल के रखांगे तो माचिस की तिली जिहड़ी हैगी है वो पॉपअप की आवाज़ ते एक छोटा जिहा धमाका करके बुझ जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिटी है ये कि वो फ्लेम नूं पॉपअप की आवाज़ नाल भड़काउंदी है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक तरह की एक्सप्लोजिव गैस भी हैगी है। ये खतरा भी पैदा कर सकती है जे किते आपां ज़्यादा मात्रा दे विच इहनूं बालीए। तो हुण जदों कैमिकल रिएक्शनस होंदियां तो उन्हां दे कुछ उन्होंने पहचानने के लिए कुछ ऑब्जरवेशनस होंदियां जिहड़ियां आपां नोट कर सकते हैं। लाइक फस्ट हैगी है चेंज इन अ स्टेट। जदों कोई भी कैमिकल रिएक्शन होंदी है स्टेट जिहड़ी हैगी है, स्टेट तो भाव है लिक्विड गैसेस या सॉलिड स्टेट उसकी बन सकती है। जिवें इत्थे जदों आपां जिंक ग्रैन्यूल ते डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पाया सीगा, इहदे विच पहलां कोई गैस नहीं सीगी, बट इस विचों गैस की एवोल्यूशन होगी तो एक नवी स्टेट बन गई उहदे तो। इस तरह एक उसकी ऑब्जरवेशन हैगी है चेंज इन कलर। ये कैमिकल रिएक्शन के फीचर भी हो सकते हैं। तीसरा हैगा एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब कलर दे विच चेंज भी हो सकता है किते भी, तो गैस की एवोल्यूशन भाव उस तो गैस भी पैदा हो सकती है। तो चौथा हैगा चेंज इन अ टैंपरेचर, मतलब कोई भी कैमिकल रिएक्शन जिथे हो रही है उत्थे टैंपरेचर दे विच चेंज भी हो सकती है, भाव उस कंटेनर का जिहड़ा टैंपरेचर है वध भी सकता है। तो ये कुछ ऑब्जरवेशनस है जिहड़ियां आपां नूं कैमिकल रिएक्शनस बारे पता होणियां चाहीदियां। तुहानूं पेपर विच क्वेश्चन आ सकता है कि वट आर द फीचर्स ऑफ अ कैमिकल रिएक्शन, या वट आर द फीचर्स या वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के विच आपां 4 जिहड़े पॉइंट हैगे आ ये आपां लिखने उस दे विच, तो ये इंपॉर्टेंट हैगा, ये तुसीं नोट भी करना है। सो हुण आपां गल करांगे इन्हां कैमिकल रिएक्शनस नूं ਸਿੰਬੋਲੀਕਲੀ किवें रिप्रजेंट किया जाता है। ਸਿੰਬੋਲੀਕਲੀ जिवें हुण इत्थे आपां नूं मैगनीशियम ऑक्सीजन ते मैगनीशियम ऑक्साइड ये वर्ल्ड इक्वेशन है, भाव इस विच कोई सिंबल नहीं हैगी। जिहड़े इस दे लैफ्ट साइड ते हैगे आ दे आर रिएक्टेंट, बट जो एरो वाले पासे भाव जो फॉर्म होया वो हैगा प्रोडक्ट। तो किसी भी कैमिकल इक्वेशनस दे विच जिहड़े रिएक्टेंट हैगे आ वो लैफ्ट हैंड साइड ते लिखे जाते हैं, तो प्रोडक्ट जिहड़े हैगे आ ये राइट हैंड साइड ते लिखे जाते हैं। तो रिएक्टेंट्स दे विच जे दो अलग अलग रिएक्टेंट्स है तो उन्हां दे विचकार प्लस का साइन पाया जाता दोनों नूं जदों ऐड किया जाता है। लाइक आपां इत्थे जिंक ते डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नूं मिक्स किया सीगा, तो जदों कैमिकल रिएक्शन लिखी जाएगी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिखा जाएगा, तो इवें ये आपां विच प्लस का साइन है, तो राइट हैंड साइड ते प्रोडक्ट जिहड़ा अपने कोले आउंदा हैगा। हुण कई बार ये भी हुंदा है कि रिएक्टेंट दे विच एक हुंदा है तो प्रोडक्ट दे विच 2 हुंदे आ, तो इत्थे जो तुहानूं दिखाया है रिएक्टेंट विच 2 हैगे आ तो उस तो एक प्रोडक्ट बनिया है। तो सच टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शनस आपां अगे पढ़ांगे उस विच की आउंदे हैगे अपने कोले। तो आपां कैमिकल इक्वेशनस बारे होर प्रोसीड करते हैं। सब तो पहला तो राइटिंग आ कैमिकल इक्वेशन, जो आप पहला इक्वेशन देखी सी वो वर्ल्ड फॉर्म च सी, बट हुण आपां जिहड़ी आ कैमिकल रिएक्शन देख रहे हैं ये सिंबॉलिकली है। पर मैगनीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का सिंबल जिहड़ा O2 है, तो मैगनीशियम ऑक्साइड का सिंबल है MgO। तो इन्हां दे विच आपां काउंटिंग करनी है भी लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड ते हर एलीमेंट के किन्ने नंबर ऑफ एटम्स पाए हैं। लाइक इधर ऑक्सीजन के 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑक्सीजन एलीमेंट के, बट राइट हैंड साइड ते एक है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एक एटम है राइट हैंड साइड से, लैफ्ट हैंड साइड से 2 है। मैगनीशियम का इधर भी एक है तो इधर भी एक है, बट ऑक्सीजन के केस दे विच इत्थे अपनी इक्वेशन जिहड़ी है वो बैलेंस नहीं गी। सो डैट इज़ अनबैलेंस्ड कैमिकल रिएक्शन।
और अनबैलेंस्ड कैमिकल रिएक्शनस नूं आपां एक होर नाम दिंदे आ, डैट इज़ कॉल्ड स्कैलेटल कैमिकल इक्वेशन। तो ये आपां नूं समझना पवेगा। सो आपां इस कमी नूं दूर करांगे, दूर करन दे लई आपां की नोट करांगे, बैलेंस्ड कैमिकल रिएक्शनस बारे जानने की कोशिश करांगे। तो जदों भी कैमिकल इक्वेशनस नूं बैलेंस किया जाता है, एक लॉ हैगा जिहड़ा हमेशा फॉलो किया जाता है, डैट इज़ लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। किसी भी कैमिकल रिएक्शन नूं बैलेंस करन दे लई ये लॉ आपां नूं ओबे करना पवेगा। इस लॉ का जिहड़ा अपना की उसका प्रिंसीपल है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ कैमिकल रिएक्शन। The total mass of element present in the products of chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants। कहने का भाव है कि प्रोडक्ट दे विच जिन्ना मास हैगा एलीमेंट्स का उन्ना ही रिएक्टेंट्स दे विच होना चाहिए। पर इत्थे मास बैलेंस नहीं हैगा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन एक है तो इधर ऑक्सीजन दो है। तो उस चीज़ को आपां नूं दूर करना पवेगा। उसनूं दूर करन दे लई आपां नूं कैमिकल इक्वेशनस नूं बैलेंस करना पवेगा। सो बैलेंस करन दे लई आपां नूं कुछ स्टैप्स फॉलो करने पैणगे। तो आपां जिहड़ी वो एक्टिविटी कीती सी कि जिंक ग्रैन्यूल ते सल्फ्यूरिक एसिड दी, ओहदी आ कैमिकल वर्ल्ड इक्वेशन हैगी है, ते आ उसदी जिहड़ी हैगी है आपां सिंबॉलिकली उसदी इक्वेशन की हैगी है। जिमें जिंक नूं Zn नाल रिप्रजेंट किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड नूं H2SO4 नाल रिप्रजेंट किया जाता है, जिंक सल्फेट नूं ZnSO4 नाल ते हाइड्रोजन नूं H2 दे नाल रिप्रजेंट किया जाता है। सो हुण इहदे विच आपां नोट करना भी कि सारा कुछ बैलेंस है। देखो जिंक तो शुरू करिए, इधर जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, इधर हाइड्रोजन 2 है क्योंकि H के पैर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है क्योंकि H के पैर 2 है, इधर सल्फर एक है, उधर भी सल्फर एक है, इधर ऑक्सीजन के पैर 4 है, भाव ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। सो दिस कैमिकल रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। इसनूं आपां नूं बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये तुहानूं एक एग्जाम्पल दसी सी भी नैचुरली किहड़ियां कैमिकल रिएक्शन बैलेंस भी मिलदियां आपां नूं, जिन्हां दे विच लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास पूरी तरह ओबे हुंदा है। बट एक हुण आपां थल्ले कैमिकल इक्वेशन देखांगे, लाइक इत्थे आपां नूं दिख रही है आयरन प्लस H2O, उस तो आयरन ऑक्साइड ते हाइड्रोजन बनी है। हुण इहदे विच आयरन इधर एक है, इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन के एलीमेंट के 4 एटम है। तो इत्थे आपां नूं इस नूं बैलेंस करने की जरूरत पवेगी। तो इस नूं बैलेंस करने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टैप्स। कुछ पड़ाव जिहड़े हैगे आपां नूं फॉलो करने पैणगे। जिवें इस विच सब तो पहला पड़ाव जिहड़ा हैगा अपने कोले, सब तो पहला स्टैप जिहड़ा स्टैप 1, किसी भी कैमिकल इक्वेशन नूं बैलेंस करने के लिए सब तो पहला उन्हां दे आस पास एक बॉक्स ड्रॉ कर लो, जिन्ने भी उस विच रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है। बॉक्सिस के अंदर आपां कोई चेंज नहीं करांगे, जो कैमिकल रिएक्शन पहला सीगी उही आपां लिख के कल्ले कल्ले आपां एलीमेंट या जिहड़ा मॉलीक्यूल है उहदे बाहर आपां एक बॉक्स ड्रॉ कर दांगे। बॉक्स ड्रॉ करके सैकेंड स्टैप फॉलो करांगे। सैकेंड स्टैप दे विच आपां इस तरह एक टेबल बना लांगे। इस टेबल दे विच आपां सब तो पहलां तां जिन्ने उस विच एलीमेंट हैगे उन्हां दे नाम लिख लांगे। लाइक इहदे च आयरन हैगा, हाइड्रोजन हैगा ते ऑक्सीजन हैगा, तो आपां उही आयरन हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन इत्थे मैंशन कर ले। जिहड़ा आ टेबल बनाया, सब तो पहला आपां नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट जिहड़े लैफ्ट हैंड साइड वो जिहड़े एलीमेंट पए आ उन्हां दा नंबर किन्ना है। इस तरह नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आपां नोट करांगे। सो इधर आयरन 1 है, इधरले पासे आयरन 3 है तो आपां 3 लिख देंगे। इधर हाइड्रोजन 2 है, आपां 2 लिखते। इधर भी हाइड्रोजन 2 है, उधर 2 लिखते। इधर ऑक्सीजन 1 है, 1 मैंशन करता। इधर ऑक्सीजन 4 है, आपां 4 मैंशन करता। ये स्टैप 2 है। हुण स्टैप 3 आपां की करांगे। स्टैप 3 दे विच आपां दोनों रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट दे विच सब तो पहला वो देखना है जिहड़ा कंपाउंड सब तो वड्डा है।
उस कैमिकल रिएक्शन दे विच, लाइक जिस दे विच एटम्स का नंबर सब तो ज़्यादा है। लाइक ये हाइड्रोजन का नंबर 2 है, आप जे देखिए हाइड्रोजन का नंबर 2 है तो ऑक्सीजन का नंबर 1 है, पर इधरले पासे आयरन के 3 है तो ऑक्सीजन के 4 है। इसलिए आप इत्थों शुरू करांगे, आयरन ऑक्साइड के अनुसार आप बिगनिंग करके बाकियां नूं बैलेंस करने की कोशिश करनी है। सो इस विच आपां की करांगे, आपां इस विच देखांगे भी जिहड़ा आयरन ऑक्साइड है उधरले पासे रिएक्टेंट दे विच वाटर सीगा, इस आयरन ऑक्साइड के अनुसार आपां, क्योंकि इधरले पासे ऑक्सीजन का नंबर 4 सीगा, इधरले पासे ऑक्सीजन का नंबर 1 सीगा, तां उस नूं आपां इक्वलाइज करने लई की करांगे, आपां वाटर जिहड़ा हैगा कैमिकल रिएक्शनस दे विच उस दे मूहरे 4 लगा देंगे। तो वाटर के मूहरे 4 लगाता, तो मतलब इत्थों अपनी बिगनिंग होनी शुरू हो गई, क्योंकि Fe3O4 जिहड़ा सीगा सब तो वड्डा सीगा ते ऑक्सीजन के 4 एटम सीगे, तो ऑक्सीजन तो ही आप शुरू की है गल। ऑक्सीजन 4 बैलेंस करने के लिए आप वाटर के मूहरे 4 लगाता, जिहड़ा कि आप इस कैमिकल इक्वेशनस दे विच लिखता। तो ये स्टैप 3 है। तो एक तरह नाल ये अपना पार्शली बैलेंसड हो गया है, पूरी तरह नहीं, क्योंकि ये स्टैप 3 सी। हुण इहदे विच हाइड्रोजन अपने किन्ने हो गए, 4 मूहरे लग गया, हाइड्रोजन 8 हो गए तो ऑक्सीजन 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 8 होने करके आपां नूं अगले स्टैप च की करना पवेगा, राइट हैंड साइड ते जिहड़ी हाइड्रोजन हैगी आ उस नूं बैलेंस करना पवेगा। उस नूं बैलेंस करने के लिए आपां इस हाइड्रोजन के मूहरे 4 लगा देंगे, तो अपनी हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी अपनी बैलेंस होगी, क्योंकि इत्थे O4 सी, इत्थे भी 4 मूहरे लाता तो ऑक्सीजन 4 हो गई। ये अपना स्टैप 4 है। हुण 5th स्टैप दे विच आपां इस आयरन नूं बैलेंस करांगे, तो आयरन नूं बैलेंस करने के लिए आपां नूं की करना पवेगा, इत्थे आयरन 3 सी, आपां इहदे मूहरे 3 लगा देंगे। तो ये अपना स्टैप 5 आ गया। तो जे इन्हां नूं टैबूलेशन च आपां रिप्रजेंट करना है, तो इस तरह आपां जिवें आयरन दे 1 सीगा आपां 3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, आपां इत्थे 3 मल्टीप्लाई करके तो उधर अपने आयरन 3 सीगे ते आपां मूहरे इत्थे 3 लगा दें। तो 6th स्टैप दे विच की आवेगा, हुण आपां सारे दे सारे जिन्ने भी बॉक्सिस हैगे जिहड़े बनाए सीगे 6th स्टैप दे विच बॉक्स सारे रिमूव कर देंगे। रिमूव करके कैमिकल इक्वेशन नूं इस तरह लिख देंगे आपां, जिवें 3 आयरन + 4 वाटर Fe3O4 + 4 H2। तो ये अपना 6th स्टैप होगा। 6 तो बाद जिहड़ा अपना 7th स्टैप होवेगा, आपां उस कैमिकल इक्वेशन दे विच सिंबल्स लिखांगे, उन्हां जिन्ने भी एलीमेंट या अपने मॉलीक्यूल पे आ उन्हां सारिਆਂ ਦੀ स्टेट किहड़ी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपां नूं आयरन जिहड़ा हैगा, लोहा जिहड़ा हैगा हमेशा सॉलिड स्टेट च ही मिलता है, तो आप ब्रैकेट दे विच S मैंशन कर देंगे। हुण इहदे विच क्योंकि इनू एयर दे विचों ह्यूमिडिटी मिली है, तो वाटर वेपर सीगे, तो इस करके उस ह्यूमिडिटी की स्टेट जिहड़ी हैगी आ वो गैसिस स्टेट है। जदों आयरन की रस्टिंग हो गई है, हुण रस्टिंग हो गई, उस तो आयरन ऑक्साइड बन गया, सॉलिड स्टेट है, नाल ही उस चों किते ना किते गैसिस जिहड़ी हाइड्रोजन गैस आ वो भी इवॉल्व होंदी है, तो वो हाइड्रोजन नूं आपां गैसिस स्टेट दे विच लिख दांगे। हुण ये उसदियां स्टेट्स आपां 7th स्टैप दे विच मैंशन करतीआं। इसे स्टैप दे विच ही आपां नूं जे आपां कोई होर चीज़ इस विच यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कैमिकल रिएक्शन जदों हुंदी है तो एटमॉस्फेयर का टैंपरेचर, प्रैशर या कोई कैटालिस्ट आपां यूज़ कर रहे हैं, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ भी मैंशन करना पैंदा है। लाइक एक कैमिकल रिएक्शन आपां नूं दिखाई है, कार्बन मोनोऑक्साइड वैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म अपने को इस विच हैगा CH3OH
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮਿਥਨॉल, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ 340 ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਲਈ ਸਨਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੀਵਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵੀ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਜਾਂ ਸਲੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।